اسلام کی کیا خوبیاں ہیں. الحمدللہ اتنا پیارا دین زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے ہمیں. قرآن میں ہر طرح سے زندگی جینے کا طریقہ، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا. لیکن ہم روز پیسوں سے خرید کر اخبار تو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں رکھا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے. تو ہماری زندگی کس چیز میں جا رہی ہے؟ کیوں افسوس نہیں ہے تجھے صاحب، کیوں افسوس نہیں ہے تجھے صاحب، نہ کوئی شرمندگی، گزر رہی ہے گناہوں میں یہ کیسی زندگی. کہ گناہ پہ گناہ انسان، اور گناہ پتہ کیا ہے، انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. میں وہی بات کہتی ہوں کہ مشکل پتہ کیا ہے، مشکل نیکیاں کرنا نہیں ہے، مشکل ہے گناہوں سے بچنا. ابھی یہ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں اچھے راستے پر بیٹھوں گا. اگر فلم تھیٹر میں جا کر کے 3 گھنٹے مووی دیکھنی پڑے، فلم دیکھنی پڑے نا، تو بہت اچھا انٹرٹینمنٹ ہوگا. شیطان پریشان نہیں کرے گا، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ وہاں نہیں کام کرتا. وہ کہتا ہے یہ تو میرا کام خود ہی کرے جا رہا ہے. کچھ یوں ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر کہ غلطی خود کرے اور لعنت بھیجے شیطان پر کہ وہ میرا کام تو خود ہی کرے جا رہا ہے، وہاں تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اب محنت کہاں کرنی ہے؟ جب ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، جب ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے. وہاں پر ہم قرآن کھولنے بیٹھے یا نیند آ رہی، اس کو سکون کا نام دے رہے. وہ کیوں نیند آ رہی ہے؟ قرآن سر کے اوپر سے جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. جہنم کی آیتیں چل رہی ہیں، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیپ کی مواد پلائی جائے گی، اور کیا کہہ رہے جی سکون آ رہا ہے. رونا کیوں نہیں آ رہا؟ دل ڈر کیوں نہیں رہا؟ ڈر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ سر کے اوپر سے جا رہا ہے. تو اس کو سمجھنا، جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن ہماری زندگیوں میں جب تک نہیں آئے گا. اب یہ جو 5 پلرز ہیں، پلرز کسے کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن، نیو ہے نا، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب اس گھر کے نیچے جو بنیاد ہے، نیو جانتے نا، نیو تری جلدی ہے، وہ نظر تھوڑی آ رہی ہے. ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیواریں، یہ روم، یہ گھر، یہ سب نظر آ رہا ہے نا ہمیں. توحید دل میں، نماز گھر میں، مرد مسجد میں، روزہ پیٹ میں، حج وہاں پر کون ہے؟ مسلمان، نان مسلم تو نہیں. زکات مسلمان کو دی جا رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چھپی ہوئی ہیں، فاؤنڈیشن نظر نہیں آ رہی. اب نان مسلم اوروں کو کیا دکھ رہا ہے؟ ہمارا ان میں سے کچھ کیا دکھ رہا ہے؟ جو اوپر بنا ہوا ہے. جب تک ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، ہم دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ کس طرح سے دین کی دعوت پھیلے گی؟ منڈیا پنڈ میں ایک سکھ فیملی سے، جٹی فیملی سے وہ لیڈی میرے گھر پہ آئی. تو ہمارا پلائی ووڈ کا کام ہے، تو اس کے ہسبینڈ لکڑ کے مستری ہیں، تو وہ ان کی وائف میرے پاس آ گئی. ان سے میری بات ہوئی، ان کو نہیں پتا تھا میرے بیک گراؤنڈ، کچھ نہیں پتا تھا. موٹی تھی کافی، 105 کلو ویٹ تھا. میں نے کچھ موٹیویٹ کیا تو انہوں نے 10-15 کلو گھٹایا. تو 2-3 میٹنگ ہوئی ہماری، بڑی خوش ہوئی. وہ میرے پاس آئی، میں ان کے پاس گئی. تو ایک دم جیسے ان کو پتا چلا باتوں باتوں میں کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہندو فیملی سے، تو ایک دم جھٹکا کھا گئی. کہتی میں نے تو پہلے ہی کیا سیدھا، میں کہہ رہی سی انہوں نے اپنے کرے کہ زینت ہے نہیں شروع تو مسلمان. وہ میں کیا کیوں جی تھوڑا کیوں اے لگ گیا؟ میں تو کدی بھی نہیں دسیا، نہ میرے ہسبینڈ نے دسیا. تھوڑا کی بھی لگ گیا. کہتے لے مسلمانیاں تو سیدھے منہ گل ہی نہیں کرتی. کیوں؟ تو مجھے نہیں اچھا لگا. میں کہتی ہوں میری پہچان اس لیے یہ نہ بنے نہیں جس کا بیک گراؤنڈ ہندو تھا اس لیے یہ ہم سے ایسے کری. نہیں یار، میرا اسلام کہہ رہا ہے، یہ ہمارا مذہب پیار کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں اسلام بہت اچھا، مسلمان بہت برے. کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن مسلمان بہت برے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیوں اپنے دین کو بدنام کر دیا؟ ہمیں تو پہلے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. توحید تو ہمیں پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ہم کسی کو سمجھائیں.
हम तो तौहीद पर खुद कायम नहीं है। कोई बात कोई परेशानी हो जाती है बाबों के पास भाग रहे हैं। वो कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, मिसाल दे रहा है। अल्लाह कहता है मैं एक मक्खी की मिसाल देते भी नहीं शर्माता, एक मच्छर की मिसाल देते भी नहीं शर्माता। तुम जिन बाबों को पुकार रहे हो, सारी दुनिया के बाबा इकट्ठे कर लो, और एक मक्खी अगर तुम्हारी प्लेट से खाना चुरा कर ले जाए, पूरी दुनिया के बाबा मिलकर भी उस मक्खी के मुंह से जो है तुम्हारा खाना तुम्हें लौटा नहीं सकते। तो वो नहीं कह रहे, वो नेक हस्तियां जो कब्रों में है वो नहीं कह रहे हमें पुकारो, वो तो खुद मोहताज है अल्लाह की। अब वहां जाके चादरें चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे, पतासे चढ़ा रहे, खोपे पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे। अरे करो हाँ जी हाँ पापा जी नू, उनसे मांगने जा रहे हैं, फिर उनको दे के आ रहे हैं। ना तो वो पेट्रोल का खर्चा दे रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा भी अपना लग रहा है, ड्राइवर के पैसे भी लग रहे हैं। तो अगर ऐसा है कुछ देने वाले तो वहां से तो लेकर आने चाहिए पैसे, फ्रूट्स अच्छी चीज वहां से लेनी चाहिए, उल्टा वहां जाके दे रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है? बहुत जरूरत है कुरान पर गौर करने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तुम अपने आप पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम आसमान पर गौर क्यों नहीं करते, ये भी अल्लाह की आयत है। तुम जमीन पर, आसमान जमीन और इसके सब बीच में जो भी सब कुछ है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। एक चींटी है, एक काले पहाड़ के नीचे जो चींटी है ना, उसकी आहट भी उसको भी अल्लाह देखता है और उसको भी अल्लाह सुनता है। और अगर ये यकीन बन जाए तो क्या इरादा करना है कि जो भी काम हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। परफेक्शन, मैं हर बार कहती हूँ परफेक्शन किसी में नहीं है, नो बॉडी इज परफेक्ट। बहुत सी गलतियां खामियां लेकर आप बैठे, बहुत सी गलतियां बुराइयां लेकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। लेकिन मोमिन वो नहीं होता जो गलती नहीं करता। फरिश्ते मासूम होते, उनसे गलती नहीं होती। इंसान है, बशर है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह तेरी जात पाक है, मैं बशर हूँ। अल्लाह तू तो पाक है, तुझसे तो गलती नहीं होगी। मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई है, बस मैंने ही अपनी जान पर जुल्म किया, बस तू मुझे माफ कर। अगर ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम ना मांगते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि मछली का पेट उनकी कब्र बन जाता। तो एक कमरे में कैद हो जाए तो हमें उम्मीद होगी शायद कोई आवाज सुन ले, दरवाजा खटखटाए, एक समुंदर का अंधेरा, समुंदर की गहराई का अंधेरा और उसके बाद मछली के पेट का अंधेरा। कौन सुनने वाला है सिवाय अल्लाह के साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। किसी भी कश्मकश में अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह की याद हमेशा, असल दिन यही है जो अल्लाह को, असल में अल्लाह को याद करना कैसा, हर वक्त अल्लाह याद रहे, मामलात में अल्लाह याद रहे। मैं आपके सामने हूँ, इस महफिल में है, मुझे अल्लाह याद, आपको अल्लाह याद। बाद में हम जब कोई मामलात करते, तिजारत करते, नाप तोल में कमी करते हैं, कोई मेहमान आता है उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, जब वो चला जाता है पीठ पीछे फौरन देखिए फलाने था ऐसी शुरू हो जाती है ना, हमें तब भी अल्लाह याद हो। मैं जब हाथ में मैं मुसल्ले पर हूँ, मुझे अल्लाह याद है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं एक के बाद एक चीज देखते जा रही हूँ और वो चीजें आगे जो मुझे देखने का हुक्म नहीं, मुझे अल्लाह याद है नहीं है। अगर जब मैं फोन उठाकर किसी के खिलाफ साजिशें रचती हूँ, जासूसियां करती हूँ, किसी का घर बर्बाद करती हूँ, किसी के बीच में दूरी डालती हूँ, मुझे अल्लाह याद है? मुसल्ले पर सर हो और मुंह पर गाली, अल्लाह को ऐसी इबादत नहीं चाहिए। मुनाफिक क्या करते थे, मुनाफिक भी तो नमाज पढ़ते थे लेकिन वो दिल से अल्लाह पर यकीन नहीं करते थे। तो अल्लाह को मुनाफिकों वाला जो है ना फरमाबरदारी वैसी नहीं चाहिए। अल्लाह को अंदर से सही में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमन मोमिनीन, और ये ईमान वाले नहीं है, ये धोखेबाज है, ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनावटी है। तो आज हम अपना जायजा लें, हम अपने आप को टटोलें कि हम क्या है, कहीं हम में से तो नहीं है, हम अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। मैं तन्हाई में नमाज पढ़ रही हूँ तो बड़ी जल्दी हो रही है या पढ़ भी नहीं रही, लेकिन अगर मैं किसी महफिल में हूँ तो मैं बड़ी तसल्ली से ठहर ठहर कर नमाज पढ़ रही हूँ। तो मैं ये किसको दिखा रही हूँ, क्या मैं अल्लाह को दिखा रही हूँ? अगर अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो वो कबूल है, अगर लोगों के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे इसका अजर तुम उन्हीं से ले। तो आखिर बात कह के अपनी बात को खत्म करती हूँ।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब महराज पर लाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जहन्नम लाई गई तो जहन्नम में सबसे ज्यादा किनको देखा गया? औरतों को। कंफर्म? एनी डाउट? औरतों। हमने कभी सवाल किया औरतों को क्यों देखा गया? वजह क्या है? हम तो घर में रहते हैं, हम बाहर जाते हैं, पर्दे में रहते हैं, नजरों की हिफाजत करते हैं, सारे मामलात तो मर्द करते हैं, तिजारत ये करते हैं, सूद के कारोबार ये करते हैं, झूठ ये बोले, लेन देन ये करें, नजरों की हिफाजत ये ना करें, छुप छुप दोस्तियां ये लगाएं, छुप छुप निकाह। ये बेचारी घर में बैठी हम कैसे फंस गई? हम कैसे फंस गई बेचारी बोली वाले, कैसे फंस गई? वजह क्या? वजह सोचा कभी? गौर किया? कौन है जुबान की तेज? कौन है जुबान की तेज? और हाँ, और बच्चों को तो कहना है बच्चे झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, गाली नहीं देना। वो बच्चा सुनी तो जानता है, वो जब देखता है लड़ाई दीवारी अगली अबू तो मेरा गुड्डे लड़ना आया गया, मैनू कहती गुस्सा नहीं करना, चिल्ला चिल्ला के अबू बेचारा उठते बेटा कौन। मुझे तो कह रही झूठ नहीं बोलना, फोन उठा के कहते मैं घर पे नहीं हूँ, मैं सो रही हूँ। तो बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। रवैये जो होते हैं वो तरबियत होती है, नसीहतें तरबियत नहीं होती। हलाल से हराम पर कमाने के लिए मजबूर करने वाला कौन? अब मैं ये फंक्शन चाहिए, सूट पा लिया, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे अटेंड करूँगी? अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे वो भी चाहिए। सूटों की शौकीन अब जन्नत कहाँ? हमारी जन्नत कहाँ है? बाप को क्या कहा गया जन्नत का दरवाजा? माँ के पैरों तले जन्नत। हमारी जन्नत? फटाफट जवाब दो, टाइम हो गया। कहाँ है जन्नत? माँ के पैरों के नीचे। किसकी माँ के पैरों के नीचे? हमारी। और हमारी जन्नत हमारी माँ के पैरों के नीचे। हमारे शौहरों की जन्नत मेरी माँ के पैरों के नीचे, हमारी उनकी, वो भी हमारी। मुझे तो फोन पर अपनी माँ से हर दिन घंटों घंटों बात करनी, दाल सब्जी भी की बनाई है, इन्नी गल्ला मैं सारियां दसनी लंबे चौड़े किस्से, लेकिन मैं तो अपनी माँ के लिए सब कुछ करूं, लेकिन मेरा शौहर मेरी इजाजत के बगैर माँ को एक पैसा कैसे दे दे? उसको कैसे पूछे? मेरे रिश्तेदार आ रहे, मैं खूब खिदमत कर रही हूँ, मुझे तो मेरे तो जितना भी है मेरा सारा भाई बहन, उनके बच्चों के बच्चे सब आ जाए, लेकिन मेरी सास, उसकी बहन या उसका एक बेटा या उसकी बेटी, वो भी नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहाँ है? ये दीन तो नहीं है जो हम दीन पर चल रहे हैं, ये दीन तो नहीं हमें सिखाया। हम जो बीजेंगे वो ही हम काटेंगे, तो वो हमारे आगे आने वाला है। अब एक सास है, उसको दामाद की तो बहुत अच्छी लंबी लिस्ट होती है, मेरे दामाद में ये भी सारी खूबियां हो, लेकिन उनमें से एक खूबी अगर उसके बेटे में आ जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं। क्यों एक नहीं हो पा रहे? हम फिरकों में पट गए, हम एक दूसरे पर लानतें कर रहे हैं, कुफर के फतवे लगा रहे हैं, वो ऐसे वो वैसे, ओ वहां नहीं जाना जी, वहां नहीं जाना। मैं तो सारी जगह जाती हूँ। अब मेरे पे लेवल कोई चीज नहीं जी, कौन हो तुसी? मैं कोई फिरका नहीं, मैं मुसलमान। मुझे समझ भी नहीं आती और मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे इन बातों में उलझाना भी हो। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान ही रहना चाहती हूँ। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मुझ गुनाहगार को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। जो कुछ भी मैं सुनती हूँ सुनाती हूँ, अल्लाह सुब्हानो तआला आप सबके साथ मुझे भी उन सब पर सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी अच्छा कहा वो मेरे अल्लाह के हुक्म से, उसकी रहमत से, और जो कुछ भी अगर मेरी जुबान से गलत निकला तो वो मेरी ही नालायकी, मेरी ही गलती है। तो अल्लाह मुझे माफ करे, आप भी करें। अगर कुछ बुरा लगा हो तो अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे इल्म में इजाफा करे, जो भी हम सुनते हैं सुनाते हैं वो चीज हमारे अमल में आ जाए
اور ہم اس دین کے لیے کوشش کریں. ایسا نہیں آج ہی سے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم عالم بن جائیں کسی مدرسے میں لے کر کے اتنی کتابیں پڑھ لیں. ارے 1 گھنٹہ نکال لو, دین کے لیے وقت نکال لو, دین کے لیے وقت نکالیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. ایک لوگ تو ہوتے ہیں ہاں جی کچھ کریں گے, سوچیں گے, ہاں دیکھتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں فیصلہ لے کر اٹھتے ہیں نہیں ہم نے کرنا ہے. تو آج یہاں سے نکلے ایسی سچی توبہ کر کر کہ آج کے بعد جو میری زندگی ہے نئی زندگی شروع ہوگی. جو نمازیں اگر اب تک چھوڑی ہیں آج کے بعد مجھے اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا. مومن وہ ہوتا ہے جس کا آج کل سے بہتر ہو. جو کل مجھ سے غلطیاں ہوئی وہ نہیں کرنی. اسٹیپ بائی اسٹیپ, وہ کہتے ہیں نا سدھرتے سدھرتے سدھر جائیں گے. غصہ نہیں کریں گے, بچوں پر چلائیں گے نہیں, شوہروں پر نہیں چلائیں گے, اپنے آپ کو جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا سننا سنانا بیٹھنا قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.